हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है, जहां हम बिल्कुल इंग्लिश को बेसिक से समझते हैं और यहां पर कहानियों, निबंध, पैराग्राफ के जरिए आपको इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझाया जाता है और आप इससे अपने इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे हम इंग्लिश के लेवल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 3 से 4 स्टेप्स है। समझिए, पहले आप स्टोरी को सुनेंगे, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। आप जानेंगे कि कैसे बोला जाता है, कैसे स्टोरी को, पैराग्राफ को बोला जाता है। दूसरा है कि सुनने के बाद आपको अगर कहीं कुछ समझ ना आए, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसको पूरे अच्छी तरह से उसको नरेट करेंगे। उसको नरेट करेंगे मतलब उसको अच्छी तरह से इंग्लिश टू हिंदी में उसको पूरा अच्छे से समझाया गया है। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस स्टोरी के दौरान कुछ नए वर्ड्स हैं जो कि आपको नहीं पता है, या फिर जो वो आपको आते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, उसकी हिंदी आपको अच्छे से बताई गई है, समझाई गई है। और एक बोनस टिप ये है कि इसी स्टोरी के दौरान एक वर्ड ऐसा चूज़ किया जाएगा, उसके आपको सिनोनिम, एंटोनिम आपको बताए जाएंगे और उसको आप और सेंटेंस भी बताया जाएगा, जिससे आपका इंग्लिश का लेवल और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। चलिए, बिना देरी किए पहले स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके बाद एक समझते हैं। मैं आराम से धीरे धीरे स्टोरी को पढ़ूंगी ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझें। Saint Kabir advice: reason for fights in married life and its solution. Everyday people from far off places used to come to listen satsang done by Sant Kabir. One day after satsang was over, a man kept sitting. When everyone left, he went to Sant Kabir and said, I have to ask you something. I'm a householder and I'm always get in fight with my family members, especially my wife. I want to know why I have so much trouble at home and how it can be overcome. Sant Kabir kept quiet for a while and then called his wife and said, Bring me a lighted lantern. Kabir's wife went and brought back a lighted lantern. Man was surprised to see this and thought to himself, why Sant Kabir had asked for lighted lantern in such an afternoon? After a while, Kabir again called his wife and said, Listen, bring me some sweet. This time, instead of something sweet, his wife came back with some snacks and gave it to Kabir. Seeing this, man thought, it is probably the house of lunatics. Salty snacks instead of sweet, and lantern in the daytime? Then, with disappointed look on his face, man said, Kabirji, I'm leaving. Sant Kabir asked, Is your problem solved now? Or is there anything more you need to ask? Man replied, Solution? What kind of solution is this? I couldn't understand. Sant Kabir said, When I asked for lighted lantern, my wife could have said, Are you crazy? Why do you need lantern in such afternoon? But she thought I might need it for some work. So she bought it without any saying anything. When I asked for sweet, she bought back snacks. Maybe there was nothing sweet in house, so she bought snacks. That's what I thought and did not said anything. Kabir continued, What's there to dispute about it?
When we avoid fighting and trust each other, we can save ourselves from getting into quarrel. That man understood that Sant Kabir did all this to show him solution for his problem. Then Kabir said, in household life, balance is made by trusting each other. If his husband makes a mistake, women take care of it. And if there is an error with woman, then husband ignores it. That's basic mantra of our family. Why do we fight at home? The reason is ego, lack of mutual trust. Husband and wife are complementary of each other. That's why if one make mistakes, then other should act wisely. Keep calm and try to solve problem with love, not with anger. In household life, one's shortcoming should be given less attention and trust should be given more importance. अब चलिए कहानी को समझते हैं। आज की जो कहानी है वो संत कबीर के एडवाइस पर है और ये जो कहानी है बेसिकली मैरिड लाइफ या फिर मैरिड लाइफ क्या, ये सभी के लिए है कि आप किस तरह से अपने रिश्तों को बना के चलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं संत कबीर एडवाइस, संत कबीर की सलाह। रीज़न फॉर फाइट्स, लड़ाई की जो वजह है इन मैरिड लाइफ में जो लड़ाई की जो वजह है वो क्या है। इट्स मैरिज लाइफ में लड़ाई का जो कारण और इसका जो समाधान क्या है, इसमें इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा। एवरी पीपल, प्रत्येक लोग जो है, फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, सदूर देश से, सदूर भी होता है दूर भी होता है, फार ऑफ मतलब होता है दूर, यूज टू कम आया करते थे, टू लिसन सत्संग, सत्संग सुनने के लिए, लिसन मतलब होता है सुनना, डन बाय संत कबीर, जो संत कबीर के द्वारा जो सत्संग किया जाता था वो प्रत्येक लोग दूर दूर से वहाँ पर सुनने के लिए आया करते थे। वन डे, एक दिन, आफ्टर सत्संग, सत्संग के बाद, आफ्टर सत्संग, सत्संग के बाद, वाज ओवर, सत्संग खत्म होने के बाद, अ मैन केप्ट सिटिंग, एक आदमी बैठा ही रहा। when everyone left, जब सभी लोग चले गए, when मतलब जब, when क्वेश्चन के लिए भी आता है लेकिन यहाँ पर when आया है एक तरह से कंजंक्शन समझिए। when everyone left, जब सब चले गए, he went to संत कबीर, वो संत कबीर के पास गए, and said, और कहा, I have to ask you something, मुझे आपसे कुछ कहना है। ask you something, ask मतलब कहना, you मतलब तुम, और आप, और something मतलब कुछ कहना है। I have to ask you, मुझे आपसे कुछ कहना है या मुझे आपसे कुछ कहना पड़ेगा। I am a householder, मैं एक गृहस्थ हूँ। एंड आई एम ऑलवेज गेट इन फाइट, मैं हमेशा अपनी वाइफ से क्या करता हूँ, मैं हमेशा लड़ता हूँ। विथ माई फैमिली, अपने परिवार से, मैं गृहस्थ हूँ, मैं हमेशा अपने परिवार से लड़ता हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा, गेट इन फाइट मतलब लड़ता हूँ, विथ माई फैमिली अपने परिवार के साथ। स्पेशली माई वाइफ, मैं विशेषकर अपनी पत्नी से ज़्यादा लड़ता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वाई आई हैव सो मच ट्रबल, मुझे इतनी परेशानी क्यों है, एट होम, घर में। हाउ इट कैन बी ओवरकम, मैं इस पे कैसे काबू पा सकता हूँ। संत कबीर कैप क्वाइट, संत कबीर क्या है, पूरा शांत है, पूरे कुछ समय के लिए एकदम शांत हो गए। एंड देन कॉल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बुलाया, एंड सेड, और कहा, ब्रिंग, लाओ, मी अ लाइटेड लैम्प लैंटर्न,
मेरे लिए एक रोशनी देने वाला लालटेन लेकर के आओ, मतलब लालटेन को जला करके लेकर के आओ। तो संत कबीर पहले क्या हो गए, एकदम शांत हो गए, सोचने लगे कि क्या सोल्यूशन इसको दें। तो अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए क्या लेकर के आओ, एक लैंटेन लेकर के आओ। कबीर वाइफ वेंट, कबीर जी, संत कबीर जी की वाइफ अंदर गई एंड ब्रॉट बैक अ लाइटेड लैंटर्न, एक लैंटर्न जला करके वापस लेकर के आई। मैन वॉज सरप्राइज्ड, वो आदमी सरप्राइज है। मैं ये इनसे सोल्यूशन पूछ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के लोगों से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, स्पेशली अपनी पत्नी से लड़ता हूँ, और ये लैंटर्न मंगवा रहे हैं। आश्चर्य से सी दिस, और ये देख करके उसको बहुत आश्चर्य हो रहा। थॉट टू हिमसेल्फ, और अपने से ही सोच रहे हैं वो आदमी, वाई सेंट कबीर हैड आस्क फॉर लैंटेन, संत कबीर ने लालटेन के लाने के लिए क्यों कहा। इन सच आफ्टरनून, इतने दोपहर के समय में लालटेन लाने के लिए, लालटेन का तो कोई काम ही नहीं, इतना दोपहर में कुछ अंधेरा ही नहीं है, अंधेरा रहेगा तो ना लैंटर्न का यूज होगा, लेकिन लैंटर्न लाने का जरूरत क्या था। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, कबीर अगेन कॉल्ड हिज वाइफ, कबीर ने फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और बुलाया। सेड लिसन, सुनो, ब्रिंग मे सम स्वीट, क्या करो, कुछ मीठा कुछ खाने के लिए ले आओ। दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सम स्वीट, स्वीट के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इस समय स्वीट के बजाय, हिज वाइफ केम बैक विद सम स्नैक्स, उनकी जो वाइफ है क्या लेकर के आई, नाश्ता लेकर के आई, स्नैक्स लेकर के आई, मतलब कुछ नमकीन लेकर के आई। एंड गेव इट टू कबीर, और उन्हें क्या कर दिया, कबीर को दे दिया। सीइंग दिस थॉट, इस तरह का विचार देखते हुए, इट इज़ प्रोबेबली द हाउस ऑफ लुनेस्टिक, उसको तो वो उसको महसूस हुआ कि लगता है ये पागलों का घर है। कभी लालटेन मंगाया जा रहा है दोपहर के समय में, तो मिठाई मांगा जा रहा है स्वीट खाने के लिए, तो नमकीन खाने के लिए दिया जा रहा है। अब लगता है ये घर पागलों का, लगता है घर है। लुनेस्टिक मतलब होता है पागल, प्रोबेबली मतलब शायद। ओके, सॉल्टी स्नैक्स इंस्टेड ऑफ स्वीट, नमकीन मिठाई के बजाय नमकीन नाश्ता, और दिन के समय में लालटेन, लालटेन इन डे टाइम, दिन के समय में लालटेन। देन विथ डिसअपॉइंटेड लुक, निराश की भावना से उसके आदमी के फेस में आया, एंड कबीर जी से कहा, निराश की भावना के साथ, निराश हो करके, उसके फेस में निराशा देख करके कबीर जी से कहता है वो, आई एम लिविंग, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। अब कबीर जी उससे कहते हैं, संत कबीर आस्क्ड, इज योर प्रॉब्लम सॉल्व नाउ, क्या तुम्हारा परेशानी सॉल्व हो चुका, हल हो गया है ना अब, और इज देयर एनी मोर यू नीड टू आस्क, और तुम्हें और भी कुछ हमें मुझे बताने की आवश्यकता है। मैन रिप्लाइड, आदमी उत्तर दिया, सोल्यूशन, समाधान, कैसा समाधान, अब तो मन में सोच रहा हो तो अब तो पागलों जैसा हरकत कर रहे हैं, दिन में लालटेन मंगा रहे हैं, आपकी वाइफ स्वीट के जगह में कुछ नमकीन लेकर के आ रही है, यहाँ का कोई समाधान दिख रहा है। What kind of solution is this, ये कैसा सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। आई couldn't अंडरस्टैंड, मैं तो कुछ नहीं समझ सका, क्या सोल्यूशन है, मैं तो कुछ सोल्यूशन समझ नहीं पाया। संत कबीर सैड, तब संत कबीर ने कहा, व्हेन आई आस्क फॉर लाइटेड लैंटेन, मैंने जब जलता हुआ लैंटेन, रोशनी वाला लैंटेन लाने के लिए कहा, माई वाइफ कुड हैव सेड, मेरी वाइफ बोल सकती थी, कुड हैव सेड मतलब बोल सकती थी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं, वाई डू यू नीड लैंटेन इन अ सच आफ्टरनून, आपको इतने दोपहर में लैंटेन की क्या ज़रूरत है। लेकिन बट शी थॉट, लेकिन वो सोची, आई माइट नीड, शायद मुझे इसकी कोई आवश्यकता होगी, इट फॉर सम वर्क, उसकी समझदारी को बताया कि देखो वो समझदारी से काम ली है, और क्या समझदारी से काम ली है, मैंने उससे मांगा, वो बिना उतना सवाल जवाब किए वो चीज़ मुझको ला करके दे दी। सो सी बॉट इट विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे मुझसे वो चीज़ ला करके मुझको दे दी। When I ask for sweet, जब मैंने उससे स्वीट लाने के लिए पूछा, स्वीट लाने के लिए कहा जब मैंने उसे स्वीट लाने के लिए कहा, शी बॉट बैक स्नैक्स, वो क्या लेकर के वापस लेकर के आई, स्नैक्स लेकर के आई। मे बी शायद,
देयर वॉज नथिंग स्वीट इन द हाउस, घर में शायद कुछ मीठा नहीं होगा, इसलिए शो सो शी बॉट स्नैक्स, इसलिए वो क्या लेकर के आई, नमकीन ले आई, नाश्ता ले आई, नमकीन नाश्ता ले आई। दैट्स वॉट आई थॉट एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग, और मैंने तो कुछ नहीं सोचा, और मैं यही सोचा कि शायद घर में कुछ मीठा नहीं होगा, इसलिए वो नमकीन ले आई, कुछ तो लेकर के आए। तो यहाँ पर आपसी सामंजस्य दिखाया जा रहा है कि जब पति ने पत्नी से कुछ कहा तो वो बिना कुछ सवाल जवाब किए उस चीज़ को उसको कर दी, और जब पति का बारी आया तो वो भी उस चीज़ को कर दिया। कबीर कंटिन्यूड, कबीर बोलते जा रहे थे, बोल रहे थे, व्हाट्स देयर टू डिस्प्यूट अबाउट इट, विवाद ही कहाँ है। व्हेन वी अवॉइड फाइटिंग, जब हम फाइटिंग, लड़ाई को जब हम टालते हैं, ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे जब विश्वास करते हैं, वी कैन सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन टू क्वारल, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, किससे, लड़ाई से बचाते हैं। दैट मैन अंडरस्टूड, वह आदमी समझ गया। द संत कबीर डिड ऑल दिस टू शो हिज सोल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम, संत कबीर को अब वो उस आदमी को समझ आया कि तब से जो संत कबीर जी कभी लालटेन मंगा रहे हैं, कभी मीठा मंगा रहे हैं, तो कुछ आ रहा है, ये सिर्फ उसको, आदमी को समझाने के लिए किया जा रहा था। देन कबीर सेड, द हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ जीवन में बैलेंस इज मेड बाय ट्रस्टिंग ईच अदर, गृहस्थ जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए विश्वास, ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ट्रस्ट मतलब विश्वास, ईच अदर मतलब एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट विश्वास है वो होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ हस्बैंड मेक्स अ मिस्टेक, वुमेन टेक केयर ऑफ इट, अगर कोई पति कोई गलती करे तो औरत टेक केयर करे, उसका ख्याल रखे। और इफ़ देयर इज़ एन एरर विथ वुमेन, और कोई औरत अगर गलती करे, कोई पत्नी अगर गलती करे, देन हस्बैंड इग्नोर्स इट, तब पति को अनदेखा करना होगा। दैट्स बेसिक मंत्र ऑफ फैमिली लाइफ, यही मूलभूत आधार है, यही एक मंत्र है फैमिली को, गृहस्थ जीवन का यही एक मूल मंत्र है। वाई डू वी फाइट एट होम, क्यों हम लड़ते हैं घर में। द रीज़न इज़ ईगो, अहंकार के कारण। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास नहीं होता, इसके कारण हम लोग लड़ते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी जो है वो पूरक होते हैं एक दूसरे के, एक के बिना एक का ज़िंदगी अधूरा है। इसलिए दोनों को आपसी विश्वास और अहंकार को हटा करके आपको जीवन में अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ना ही सिर्फ इसमें, बाकी सभी रिलेशनशिप में यही देखा जाता है। ईगो और म्यूचुअल ट्रस्ट के बिना आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ सकता है, आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है। दैट्स वाई इफ़ वन मेक मिस्टेक, इसलिए जब एक गलती करे, देन अदर शुड एक्ट वाइजली, तो दूसरा दम दिमाग से काम ले, दम चतुराई से काम ले। कीप काम, शांत रहे, एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और शांत रह करके कोशिश करे परेशानियों का समाधान करने का, विथ लव नॉट विथ एंगर, प्यार के साथ ना कि गुस्से के साथ। इन हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ जीवन में, वन शॉर्ट कमिंग शुड बी गिवन लेस अटेंशन एंड ट्रस्ट शुड बी गिवन मोर, और गृहस्थ जीवन में कमियों को कम महत्व दें, अपनी कमी, दूसरों की कमी हो चाहे अपनी कमी हो, अब कमियों को कम महत्व दे करके किसको महत्व ज़्यादा दे, ट्रस्ट को, विश्वास को अधिक महत्व देना चाहिए। अगर आप में विश्वास है, आपके रिश्ते में विश्वास है, तो आपका रिश्ता बहुत लंबे चलेगा। अब ये कहानी तो ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैंने बोनस टिप की बात की थी। इस वर्ड में फ़ाइट का यूज़ हुआ है काफ़ी बार, तो फ़ाइट नाउन की तरह भी यूज़ होता है, और फाइट जो है एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। तो फाइट मतलब होता है लड़ाई करना, लड़ना, संघर्ष करना। इसका सिनोनिम्स है क्वैरल, स्ट्रगल, स्क्वैबल, बैटल, क्लैश, डिस्प्यूट। और एंटोनम है प्रमोट, इनकरेज, जिसका मतलब होता है बढ़ावा देना। एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट, आई फाइट एंड हंट। आई ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, मैं हमेशा
लड़ाई के लिए तैयार रहता हूँ। तो आप यहाँ फाइट की जगह में आप क्वेरल भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रगल भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वैबल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आई फाइट एंड हंट, मैंने लड़ाई की और उसके बाद शिकार किया। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, आई स्ट्रगल एंड हंट, आई क्वेरल एंड हंट, आई स्क्वैबल एंड हंट, आई क्लैश ऑन हंट, आई डिस्प्यूट एंड हंट। कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग यही होगा। डिस्प्यूट मतलब ज़्यादातर ऐसे विवाद होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।